Good morning, students. Today we will discuss first chapter of history, the French Revolution. Yes. The old regime describes the society and institutions of France before 18th century. Society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. It was part of the feudal system that dated back to Middle Ages. The French society was divided into three classes known as estates: first estate, second estate, and third estate. In first estate, clergy, group of persons invested with special functions in the church. They had access to high offices, exempted from paying taxes. टैक्स उनको नहीं देना पड़ता था. Nobility, rich noble owning lands, exempted from paying taxes. Enjoyed, किस चीज़ का enjoy करते थे? Services from peasants obliged to work in house and fields, to serve in the army, or to participate in building road. Now third estate, rich businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc. Peasants and artisans, small peasants, landless laborers, servants. These were in third estate. The third estate was the remaining 98% of the population. Merchants, well educated, believed in liberty and equality, had to pay taxes through still retained much of their wealth. Workers in the cities earned low wages, often unemployed and often hungry. Peasants, half of their income was paid out to the nobles, taxes and church. यानी कि जो किसान होते थे उनकी आधी इनकम तो नोबल्स को और चर्च को टैक्स देने में निकल जाती थी. द चर्च लेविड टाइथ्स ऑन द पीजेंट. टाइथ होता है रिलीजियस टैक्स. टाइल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू स्टेट. यानी कि टाइथ तो चर्च को देना होता था और टाइल स्टेट को. इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state only. यानी कि टैक्स केवल थर्ड स्टेट को ही वहन करने पड़ते थे. The old regime. This cartoon from the era of French Revolution depicts the third state as a person in chains who supports the clergy and nobility on his back. Struggle for survival. By 1789, the population of France had reached 28 million from 23 million in 1715. This led to rapid increase in demand for food grains. Population बढ़ने से food की demand बढ़ गई. Production could not keep pace with the growing demand. और production इतनी नहीं हुई. Price of bread rose rapidly. और ब्रेड के दाम बढ़ गए तेजी से. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वुड वर्कड एज लेबरर्स हैड फिक्स्ड वेजेस. यानी कि ज़्यादा लोग जो काम करते थे उनकी जो मेहनताना था, मजदूरी थी, वो फिक्स थी. द वेजेस कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस. द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड ड्यूरिंग ड्रॉट एंड हेल. जब कभी ओले पड़ते या सूखा पड़ता, द सिचुएशन वुड वर्सन एज द हार्वेस्ट वुड रिड्यूस. This led to subsistence crisis. Subsistence crisis होता है आजीविका संकट. An extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. The middle class of the third state. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. This group staged the revolt against increasing taxes एंड सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस. मिडिल क्लास ने अब जो टैक्स बढ़ रहे थे और जो विशेषाधिकार थे लोगों के पास फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास,
उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। द मिडिल क्लास इंक्लूडेड, कौन थे इनमें? मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एटसेट्रा। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, यानी कि जन्म से किसी को विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। फिलोसफर्स ऑफ द इरा, उस समय के विद्वान कौन थे? फिलोसफर कौन थे? फिलोसफर जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या लिखते हैं? स्पीक्स अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन होता है दैवीय अधिकार, जो मोनार्क के पास हैं वो नहीं होने चाहिए। जीन जैक रूसो इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखते हैं? प्रपोज्ड ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मॉन्टेस्क्यू in his book The Spirit of the Laws proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. His idea was based on the American Constitution and its guarantee of individual rights. The model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. कॉलोनी होता है उपनिवेश, जब ब्रिटेन से अमेरिका ने अपने 13 उपनिवेश छुटवाए थे, उसके बाद वहां ऐसी ही गवर्नमेंट बनाई गई थी। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। लोगों तक न्यूज़पेपर और बुक्स से इनके आइडियाज पहुंचते थे। यहाँ ये महल दिखाया गया है। द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल मई 5, 1789, इस आलीशान महल के अंदर वो तीनों स्टेट्स की मीटिंग हुई थी। मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल टू वोट बाय हेड और बाय ऑर्डर। यस, इसमें क्या था? जो पुराना नियम कानून था पुराने राजतंत्र का, भी हर एक स्टेट को एक वोट डालने का अधिकार था, मगर इस टाइम जो प्रतिनिधि थर्ड स्टेट के गए थे वो चाहते थे कि एक प्रतिनिधि एक वोट डाले, जो राजा ने इनकार कर दिया था और थर्ड स्टेट ने वहां से वॉकआउट कर दिया था। यस, द डेलीगेट्स ऑफ द थर्ड स्टेट इंस्टेड दैट द 3 स्टेट्स मीट टुगेदर दैट द वोट बी टेकन बाय हेड रेदर देन बाय ऑर्डर, सिंस देयर वर फार मोर डेलीगेट्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट, दिस प्लान वुड गिव देम ए मेजॉरिटी। The king refused to grant their request. The third state refused to budge. The tennis court oath. 20 June 1789, representatives of the third state assembled at the indoor tennis court in Versailles. वो प्रतिनिधि थे जो थर्ड स्टेट के, वो इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए वर्साई के अंदर। They declared themselves a national assembly. They gave themselves the power to pass laws on behalf of the French people. They were led by Mirabeau and Abbessier. ये कौन थे? मिराबे कौन था? ये he was born in a noble family and Abbessier originally a priest. Mirabeau delivered powerful speeches to the assembled crowd and Abbessier wrote an influential pamphlet called What is the Third State? Now, storming of the Bastille. 14th July 1789, due to severe winter, the harvest was not good. The price of bread rose and hoarders, जमाखोर, exploited the situation. जमाखोरों ने सिचुएशन को और विस्फोटक बना दिया। There was not enough supply of their daily bread. Angry women stormed into the shops, और औरतों में गुस्सा आ गया और उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ मचा दी। Rumors spread, अफवाह फैल गई, that the king had ordered Swiss troops, troops होता है सेना, to move into the city. Fearing for their lives,
some 7,000 men and women broke into number of government buildings in search of arms. हथियारों की खोज में 7,000 जो आदमी और औरतें थे इकट्ठे होकर के सरकार की बहुत से भवन बिल्डिंग गिरा दी. Agitated crowd stormed and destroyed the prison Bastille. बास्तिल जो एक जेल थी, किले के अंदर जेल थी, फोर्ट्रेस प्रिजन बोलते हैं उसको, तो उसको भी गिरा दिया. द डे दैट फॉलोड सा मोर रियोट्स. रियोट होता है दंगे, बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. लिबरेटेड प्रिजनर्स. लिबरेटेड होता है स्वतंत्र करा लेना. प्रिजनर्स को उन्होंने स्वतंत्र करा लिया. प्रिजनर्स ऑफ द बास्तिल वर रिलीज्ड एंड मार्च्ड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द पेरिस इन विक्ट्री. It was a great symbolic event, one which is still celebrated in France every year. The Great Fear 1789. The end of July and beginning of August, there were riots in the countryside. Countryside होता है देहात. Peasants burned their nobles. चैट्यू उनके महलों को गिरा दिया, जला दिया. And destroyed documents which contained their feudal obligations. यानी कि जो सामंतों ने अपने उनके कागज पत्र थे वो सारे के सारे उन्होंने नष्ट कर दिए. The night of August 4, 1789. The National Assembly response to the Great Fear. August 4, 1789. One by one members of the nobility and clergy rose to give up feudal dues, serfdom होता है भूदास, the tithes, hunting and fishing rights, personal privileges. In one night feudalism was destroyed in France. feudalism होता है सामंतवादी प्रथा थी वहाँ, वो एक रात में खत्म कर दी. Tithes were abolished. Tithes were abolished यानी कि जो धार्मिक कर था वो खत्म कर दिया. लैंड ओन्ड बाई चर्च वर कॉन्फिस्केटेड. कॉन्फिस्केटेड होता है जब्त कर लेना. चर्च की जितनी जमीन थी वो जब्त कर ली थी. क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस. गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवरे. सरकार ने क्या एक्वायर कर लिया था? जो चर्च के पास जमीन थी, जायदाद थी, संपत्ति थी, सारी ले ली. उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2 बिलियन लिवरे. द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी. द नेशनल असेंबली रिजॉल्व्ड द इमीडिएट फाइनेंशियल क्राइसिस बाय सीजिंग चर्च लैंड. पीछे आ गया ये सीजिंग चर्च लैंड. जो चर्च की जो भूमि थी वो ले ली. पुटिंग द चर्च अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. चर्च को स्टेट के कंट्रोल के अंदर ले आए with the civil constitution of the clergy. Cartoon representation of the confiscation. confiscation होता है जब्त कर लेना of church lands. यहाँ ये कार्टून दिखाया गया जो पीछे बताया था, चर्च की जमीन को जब्त कर लिया था, उसके बारे में कार्टून है. Constitution of 1789. The National Assembly drafted the Constitution. Objective was to limit the power of the monarch. 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का निर्माण कर लिया था. उसमें जो मोनार्क की, राजा की जो पावर थी वो लिमिट कर दी गई थी. यस, द पावर्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इन तीनों संस्थाओं को पावर दे दी गई. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. The National Assembly. The new National Assembly created the historic and influential document. कौन सा? The Declaration of the Right of Man. उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया आदमी और नागरिक के अधिकारों का. Which stated the principle that all men had equal rights under the law. Now here is a figure. Constitution of 1791. कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया था पीछे भी आया है. जुडिशरी,
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। द नेशनल असेंबली वॉज वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज। एक्टिव सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। यानी कि जो एक्टिव और पैसिव दो तरह के वहाँ नागरिक थे। जो एक्टिव नागरिक थे वो इलेक्टर्स के लिए वोट डालते थे, हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो आगे असेंबली का चुनाव करते थे। असेंबली में कितने मेंबर थे? 745। एक्टिव सिटीजन कंप्राइज्ड ऑफ ओनली मैन अबाउट 25 years of age who paid taxes. The remaining men and all women were called passive citizens. वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। अब क्या होता है, जो नेशनल असेंबली है पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर देती है। रीजन क्या था? किंग लुई ने क्या किया, संविधान को तो मान्यता दे दी मगर वह बिजी था किसके साथ? पर्सिया के साथ और फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज के साथ गुप्त वार्ता कर रहा था और वो सभी फ्रांस के ऊपर आक्रमण करना चाह रहे थे। जैसे ही नेशनल असेंबली को पता चलता है इस बात का, वो पहले ही पर्सिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ऑन अप्रैल 1792 द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया बिफोर दे कुड सेंड ट्रूप्स टू फ्रांस to put down the revolt that had been taking place since 1789. This was a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. The patriotic song यानी कि देशभक्ति का गीत that became popular was the Marseillaise, composed by the poet Rosette Isly. The मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। जो मार्सिले ये सॉन्ग था वो आजकल फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। द सैन क्लॉड्स। एट द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन द वर्किंग मैन ऑफ पेरिस अलाउड द रिवॉल्यूशनरी पीपल टू लीड देम, बट बाय 1790 वेरियस रेडिकल ग्रुप बिगेन ट्राइंग फॉर पावर. Among them, the Jacobins were the most successful. The members of the Jacobin club belonged to mainly less prosperous sections of the society, यानी कि गरीब लोगों का समूह था जो जैकोबिन क्लब में लोग थे. They included shopkeepers, artisans, servants and daily wage workers. The Jacobins came to be known as the sans-culottes. लिटरेरी मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज, यानी कि नी ब्रीचेज होता है घुटन्ना, जो बिना घुटन्ने के थे वो लंबा ट्राउजर डालते थे. द जैकोबिन्स वोर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर सिमिलरली टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर. डॉक वर्कर होता है गोदी कामगार जो बंदरगाहों पर काम करते थे. दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेज. यानी कि नी ब्रीचेज कौन डालता था? नोबल परिवार के लोग, और ये थे विदाउट नी ब्रीचेज जो लंबा ट्राउजर डालते थे. द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ऑन अगस्त 10, 1792 द जैकोबिन्स लीड ए लार्ज नंबर ऑफ Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. They stormed the palace of Tuileries. Yes, the royal family barely escaped with their lives. The king's guard were killed, and the king and his family fled to protection ऑफ द असेंबली. यानी कि राजा के गार्ड्स को मार दिया गया था. अब राजा को असेंबली से प्रोटेक्शन चाहिए था. तो क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज ओवर. अब जो संवैधानिक राजतंत्र था वो खत्म हो गया. लेटर इलेक्शन वर हेल्ड. अब इलेक्शन होते हैं, उसमें सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 years ऑफ अबव regardless of wealth got the right to vote.
On 21st September 1792, the newly elected assembly called convention. अब जो नई असेंबली चुनी गई उसको कन्वेंशन बोला गया और इनका लीडर कौन बना? मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर, वो जैकोबिन क्लब्स का लीडर था। एबोलिश्ड मोनार्की, मोनार्की समाप्त हो गई। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। ए रिपब्लिक is a form of government where people elect the government, including the head of the government. Louis XVI was sentenced to death. अब लुई 16 को क्या होता है? देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा चला दिया जाता है और उसको फांसी की सजा दी जाती है और 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दे दी जाती है और उसके कुछ ही समय के बाद उसकी रानी को भी फांसी दे देते हैं। द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर लेड ए परेड ऑफ प्रोमिनेंट एंड नॉट सो प्रोमिनेंट सिटीजन्स टू देयर डेथ। रॉबेस्फेयर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि उसकी नीतियाँ बहुत सख्त थी। सेट मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस। मीट एंड ब्रेड वाज राशनड। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर ग्रेन एट ए price fixed by the government. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. The promises of the Declaration of the Rights of Man were forgotten. Terror was the order of the day. Those who rose in the convention calling for an end to the terror were its next victim. Finally, the Jacobins had enough. Robespierre was arrested and एग्जीक्यूटेड ऑन जुलाई 1794, यानी कि रॉबेस्फेयर के जो समर्थक थे वो भी उससे दुखी हो गए थे और अंत में रॉबेस्फेयर को अरेस्ट किया गया और उसको जुलाई 1794 को फांसी दे दी गई, बल्कि उसको गिलोटिन पे चढ़ाया गया था। गिलोटिन वाज ए डिवाइड इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिलोटिन। क्या होता था उसमें? 2 पोल और एक ब्लेड, आदमी को उसमें खड़ा करके ब्लेड चला देते थे, बी हेडेड कर देते थे, उसका सिर काट दिया जाता था। द डायरेक्टरी, अब रॉबेस्फेयर के बाद डायरेक्टरी राज करती है। पीपल हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ द इनस्टेबिलिटी एंड ब्लड सेल ऑफ द रिवोल्यूशन एंड वर रेडी फॉर समथिंग मोर मॉडरेट। बाय 1795 द रिपब्लिक वॉज गॉन and 5 men with business interests had the executive power in France, यानी कि एक डायरेक्टरी बना दी, डायरेक्टर थे उसके और 5 मेंबरों की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, अब उनको शासन सौंप दिया गया। दिस न्यू गवर्नमेंट वाज कॉल्ड द डायरेक्टरी। इट वाज फॉर मोर कंजर्वेटिव देन द रिपब्लिक हैड बीन। इट वाज ऑल्सो इनइफेक्टिव, और इससे क्या हुआ? डायरेक्टर्स का और एग्जीक्यूटिव्स का आपस में झगड़ा चलता था। इससे नेपोलियन बोनापार्ट को सत्ता में आने का रास्ता मिला। यस, नेपोलियन बोनापार्ट। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और जिन नेबरिंग कंट्रीज को जीतता अपने फैमिली के लोगों को राजगद्दी पर बिठा देता। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर, लिबरेटर मीन मुक्तिदाता, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। इन्वेडिंग फोर्स होता है आक्रांता सेना के रूप में उसको जाना गया। फाइनली नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू in 1815. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures. Many of Napoleon's revolutionary ideas of liberty and modern laws make a lasting impact in Europe. Summary: the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution.
These ideas spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Even these ideas influenced people in the colonized India. Tipu Sultan and Ram Mohan Rai were influenced by the ideas coming from revolutionary France. भारत के टीपू सुल्तान और राम मोहन राय भी फ्रांस की जो क्रांति थी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। थैंक यू।